और भारत में कोविड वैक्सीनेशन की जबरदस्त तैयारियां दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में शुरू हो गई हैं। ये शहर का नोडल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होगा, जहां से छोटे सेंटर पर वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। वैक्सीन को रखने के लिए यहां -80 डिग्री तक काम करने वाले फ्रीजर पहुंच चुके हैं। और मेरा नाव के आयुष्मान कुमार ने इस अस्पताल का दौरा किया। आप भी वैक्सीनेशन ड्राइव की तैयारियों को देखिए। The preparation for vaccine storage in the national capital has begun. We are in Rajiv Gandhi Hospital, which will be the nodal center for storage of vaccine. We have Dr. Chavi Gupta from Rajiv Gandhi Hospital. Ma'am, thank you for taking out time. Can you please explain us how will the storage be done in this hospital? Because this will be one of the nodal hospital where the vaccines will be kept. We have allotted an area for the storage of vaccines, and we have allotted the ground and first floor where the civil and electrical work is taking place, and we'll be having refrigerators of all temperatures like 2 to 8, -40 and -80, depending upon what the requirement is and what we are getting, what the supply is. And we'll be storing all the vaccines in those refrigerators, and from there, as per the demand, the vaccines will be circulated. Ma'am, we can also see some of the refrigerators out here. If you can tell us what are these and what is the capacity of these refrigerators? This is a deep freezer with a -40 degrees Celsius temperature, and as you can see, we have a graphical system also, and we have this display of temperature, and in this graph we get the temperature, daily temperature, and if there is any variation, the alarm system, it just beeps, and our technical staff, they come and rectify the error. We can see it displaying around -40 is there, and in other also these threes which we have, one is -3 degree as well, and other -17 is showing. So because we have seen that the Pfizer vaccine requires minimum of 70 degrees. Are we actually ready for that? Yeah, we are ready because we are also having a -80 degrees Celsius refrigerator, and I think India is ready for to welcome the vaccine, and we can easily store them. So we are in Rajiv Gandhi Hospital where you can see these freezers are there. This will be the similar module will be followed in the process of storage of vaccine, where these freezers will be used. Even one freezer will be there where the even -70 degree temperature can be maintained. This is the nodal agency, nodal place where the vaccines will be stored, and then it will be given to the other centers for vaccination process. तो देखा आपने, दिल्ली में वैक्सीनेशन ड्राइव की तैयारियां जोरों पर हैं। राष्ट्रीय राजधानी में करीब 3500 स्वास्थ्य कर्मचारियों को इस काम के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इनमें से 1800 कर्मचारियों को शहर के 609 कोल्ड चेन पॉइंट्स पर बहाल किया जाएगा। इस ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत सोमवार से हो गई है। ये ट्रेनिंग दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा संचालित की जा रही है। और हमारे सहयोगी आयुष्मान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जी आयुष्मान, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी तो, और जिस तरीके से बात करते हुए भी हमने सुना कि भारत पूरी तरीके से जो वैक्सीनेशन है उसके स्टोरेज के लिए तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल श्वेता, अगर दिल्ली के संदर्भ में बात करें तो मौजूदा स्थिति में दिल्ली का जो राजीव गांधी अस्पताल है उसे नोडल सेंटर बनाया गया है। साथ ही साथ जो वैक्सीनेटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है अगर आप मौजूदा स्थिति को देखें श्वेता, तो क्योंकि पहले करीब 3500 स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद 1800 के करीब स्वास्थ्य कर्मियों को इन्हीं कोल्ड चेन पॉइंट्स पर लगाया जाएगा। कोल्ड चेन पॉइंट्स पर हैंडलिंग की जो सुविधा होगी उससे कहीं ना कहीं बहुत अहम है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये तैयारियां की जा रही हैं। करीब 600 से के करीब स्वास्थ्य कर्मी जो होंगे श्वेता, वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर होंगे। जैसा हमने पहले भी बताया है, ऑपरेशनल गाइडलाइन जो स्वास्थ्य मंत्रालय की है उसमें साफ कहा गया है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस होगा वो प्रायोरिटी ग्रुप्स में होगा, जिसमें कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स आएंगे। दिल्ली सरकार ने वो पोर्टल जारी कर दिया है, उस पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को जाकर खुद को रजिस्टर करना है, क्योंकि पहली जो डोज होगी, पहली लाइन ऑफ वैक्सीनेशन जो होगी वो स्वास्थ्य कर्मियों की होगी। मौजूदा स्थिति में हमें ये बताया जा रहा है कि शुरुआत में पहले डॉक्टर्स को ट्रेन किया जा रहा है, इसके बाद फिर आशा वर्कर्स को ट्रेन किया जाएगा, और एक चेन सिस्टम के तरीके से वैक्सीनेशन होगा। जहां वैक्सीनेशन होगा वहां पे 3 रूम्स होंगे। पहले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दूसरे में जब वैक्सीन लगेगी, और तीसरे में पोस्ट वैक्सीन इफेक्ट को देखने के लिए
किसी भी जो भी वैक्सीन लेने आएंगे उन्हें रोका जाएगा। मौजूदा स्थिति में दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल को एक नोडल सेंटर बनाया गया है और इसके साथ ही राजीव गांधी अस्पताल में एक यूटिलिटी ब्लॉक अलग से तैयार किया जा रहा है श्वेता, जहां की नए जो रेफ्रिजरेटर्स आएंगे उन्हें रखा जाए, डीप फ्रीजर्स, क्योंकि हमने देखा कि अभी तक फाइज़र की जो वैक्सीन है उससे कई जगह पे एक तरीके से अप्रूवल मिला है। तो मौजूदा स्थिति में जो स्वास्थ्य मंत्रालय हमें बता पा रहा है वो ये है कि आने वाले कुछ समय में भारत में भी किसी एक वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन ज़रूर मिलेगा। ऐसे में तैयारियां दिल्ली में ज़ोरों पर हैं वैक्सीनेशन की। श्वेता जी बिल्कुल आयुष्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं ना कहीं कोरोना के बाद वैक्सीनेशन जितना ही ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी ये भी है कि उसके स्टोरेज को लेकर कोई कोताही न बरती जाए।